Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online, and I am Dr. Asad, and with my expertise in the subject of biology I will be starting another new kingdom of organisms known as the recyclers or the kingdom fungi. So in this lecture, that is probably the chapter 8 of pre-medical biology first year, we will discuss why there was a need to introduce this kingdom, and we will also go through the characteristic features and the structural components of the organisms that are present in this kingdom. So by the end of the lecture, you should be able to define fungi and the need why they have been introduced into a separate kingdom rather than being placed with other unicellular or simple multicellular organisms, the Protista or the kingdom Monera. We will also highlight the general characteristics of fungi, and then we will also cover the different structural components that have a significant role in the survival of fungi in an environment wherever they are present. So fungi, they can be defined as a group of eukaryotic organisms absorptive in nature, which means that they obtain their nutrition through decomposition of other organic matter rather than being able to make their own food energy, and then still they have some characteristics that are in common with the animal and plant cell, जैसे कि presence of a eukaryotic cell that has membrane bounded organelles and nucleus present in it. लेकिन यहाँ पे जो बड़ा एक अहम characteristic feature है जिसकी वजह से fungi they have been placed separately is that they do not have any ability to मेक देयर ओन फूड. इसके अलावा भी आगे चल के हम डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे जिससे कि हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि वाई देयर वाज अ नीड ऑफ अ सेपरेट किंगडम फॉर फंगाई. So on this slide we will try to understand why there was a need of separately placing the fungi into a separate kingdom that were earlier placed under kingdom Plantae due to some structural and functional similarities, जैसे कि there had fungi have presence of cell wall and they are non-motile as well. So these were the few reasons why they were initially placed under the kingdom Plantae. Later on it was also found out that they had some similarities with the animal cell as well, जिसमें कि एक सिमिलरिटी क्या थी कि चूँकि फंगाई की आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल वॉल है एंड इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ दिस काइटिन ओवर हेयर. तो इसी तरह से एनिमल किंगडम में भी एक ग्रुप आता है आर्थ्रोपोड्स का जिनका सेल वॉल तो नहीं लेकिन एक्सोस्केलेटन होता है, दैट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज़ कम्पोज्ड ऑफ काइटिन. इस बेस के ऊपर भी और हेट्रोट्रॉफिक नेचर की बेस के ऊपर भी दे वर कंसिडर टू हैव एंसेस्ट्रल एसोसिएशन विद द फंगाई. इसका क्या मतलब है कि एनिमल सेल जो है वो फंगाई से इवॉल्व हुआ है. सो दिस वाज द इनिशियल थॉट ऑफ द माइकोलॉजिस्ट जो कि फंगाई को एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटेल में पढ़ते हैं. लेकिन बहुत सारी जो फर्दर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि वो एनिमल से डिफरेंट भी थी, जैसे कि न्यूक्लियर माइटोसिस है, उसके अलावा सेल वॉल की प्रेजेंस है और इनकी नॉन मोटिलिटी जो है, इस वजह से इनको एनिमल किंगडम में भी नहीं प्लेस किया जा सका. और सबसे अहम कैरेक्टरिस्टिक फीचर था एक तो ये न्यूक्लियर माइटोसिस का एक प्रोसेस, और फर्दर जब फंगाई का डीएनए एनालिसिस भी किया गया तो इट वाज फाउंड आउट दैट देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन द एनिमल एंड द फंगाई. अब समझने की ये ज़रूरत है कि ये न्यूक्लियर माइटोसिस क्या होता है. ठीक है, जनरली माइटोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम जब सेपरेट हो जाते हैं बाय द स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ऑपोजिट साइड पे जाते हैं और फिर सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है और जिसकी वजह से क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो दो सेल में सेपरेट हो जाएगा. इसके केस में क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप तो ब्रेक डाउन नहीं होता, लेकिन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंस्ट्रिक्ट करती है बजाय के सेल की जो वॉल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट करें. ठीक है, और एंड रिजल्ट क्या होता है कि दो न्यूक्लियाई जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं अपने अपने क्रोमोसोमल पार्ट को लेके. Now in order to understand this process of nuclear mitosis, हमें सबसे पहले तो आइडिया होना चाहिए कि जनरली जो माइटोसिस है उस प्रोसेस में क्या हो रहा होता है. कि यूँ हमारे पास
आउटर सेल मेम्ब्रेन है, इट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस जिसके अंदर जो है प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट इज़ माइटोसिस इज अकरिंग। तो नॉर्मली क्या होगा कि जब एक दफ़ा स्पिंडल फाइबर जो है वो कंस्ट्रक्ट करके क्रोमोसोम के पार्ट, क्रोमोसोम्स को जो है वो दोनों पोल्स पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक एक क्रोमोसोम हमने अटैच कर दिया विद द स्पिंडल जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो जनरली उसके केस में क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो यहाँ से इम्पेंज करके सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इन द एंड क्या होता है कि दो हमारे पास डॉटर सेल्स के पास जो है अपने अपने न्यूक्लियस में क्रोमैटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होगा। लेकिन इसका जो माइटोसिस है इन केस ऑफ फंजाई, जिसको कि हमने न्यूक्लियर माइटोसिस का नाम दिया, इसके केस में क्या होता है कि ये जो सिंगल सेल है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है दैट आल्सो ब्रेक्स डाउन, ठीक है, जिसकी वजह से जो दो सेल्स हैं उनके पास दो न्यूक्लियाई आते हैं। अब यहाँ पे न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है दैट डज नॉट ब्रेक्स डाउन, ठीक है। स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं, क्रोमोसोम्स फार अपार्ट हो जाएंगे, दोनों पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, ठीक है। सो देयर इज जो यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसमें डिवीजन होती है, ठीक है। इन केस ऑफ न्यूक्लियर माइटोसिस न्यूक्लियर एनवेलप इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, बल्कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है दैट कंस्ट्रिक्ट्स, जिसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है कि एक ही सेल के अंदर दो डॉटर न्यूक्लियाई की प्रेजेंस होगी, ठीक है। उनके अंदर अपना अपना क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होगा इस तरह से। So this is the type of mitosis that occur in case of fungi, the basis of which they have been placed in a separate kingdom, ठीक है। So one of the reasons why they have been placed in a separate kingdom is this unique process of nuclear mitosis. So now we will come to the differentiating or those general features that are assigned to those organisms present in the kingdom fungi. So obviously they are a eukaryotic cell with non-vascular structure. Non-vascular का क्या मतलब है कि किसी भी किस्म का ऑर्गेनाइज्ड वेस्कुलर बंडल इनके अंदर ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज्म है वो उस तरह से प्रेजेंट नहीं होता जैसे कि प्लांट्स में है। एंड देन दे आर हेट्रोट्रॉफ्स एज वेल, ठीक है। रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मैकेनिज्म एक्सिस्ट कर सकते हैं दैट आर आइदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, एंड ऑब्वियसली देन देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ काइटिन इन देयर सेल वॉल। और फिर एक जो इम्पॉर्टेंट फीचर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसकी वजह से दैट वाज वन ऑफ द रीजंस टू प्लेस देम इन अ सेपरेट किंगडम वाज द न्यूक्लियर माइटोसिस in which the product is formation of two daughter nuclei. Then we have another very important characteristic feature of the fungi that they undergo alternation of generation. इसका क्या मतलब होता है कि एक haploid gametophyte जो है that is transformed into diploid gametophyte, ठीक है। जैसे कि इसका क्या मतलब, इससे क्या मुराद होती है कि एक ही लाइफ साइकिल में फंगाई की देयर इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हैप्लॉइड जो है वो गेमेटोफाइट होते हैं, उसके बाद जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दो जनरेशन्स डिफरेंट फेजेस में एग्जिस्ट करती हैं इन केस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द फंगाई, जिसको अभी हम आगे चल के जब फंगाई की डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें हम इस प्रोसेस को डिटेल स्टडी करेंगे किस तरह से हैप्लॉइड गेमेटोफाइट फेज ट्रांसफॉर्म होता है इनटू डिप्लॉइड गेमेटोफाइट दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। उसके अलावा बहुत सारे जो फंगाई हैं दे हैव बीन फाउंड टू बी पैरासिटिक इन नेचर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल यू कैन सी ओवर हेयर द रस्ट एंड स्मट्स। उसके अलावा कमर्शियल यूज़ में एडिबल फॉर्म के लिए या खाने के लिए जो मशरूम्स और ट्रफल्स हैं इनका यूजेज बहुत आम है। और उसके अलावा जो मेडिकल फील्ड में यूजेज है दैट इज़ in form of medication, the penicillin that is one of the most common
antibiotics for bacterial and other infections. तो इस तरह से इकोलॉजिकल और उसके साथ साथ जो है कमर्शियल यूज़ भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है फंगाई का. So we will continue to discuss the different aspects of fungi, that are the mode of nutrition, even the structure और फिर types of reproduction, जो phenomena हमने पढ़ा था alternation of generation का. So do like our video if you have been able to understand the questions that we discussed in the learning objective section, and if you have been able to understand the concept of fungi, why they have been placed in a separate kingdom, what are their general characteristic features, and do share it with your colleagues as well. In the comment section, do mention if you have any question relevant to the topics that we have covered in this video, and do not forget to subscribe to our channel and click the bell button so you can receive new video notification on regular basis. Thank you very much.